السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان اور بیلاروس کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے درمیان 1 on 1 اور وفود کی سطح پر مذاکرات، دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال، تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور پارلیمانی تبادلوں کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ، دونوں ملکوں کی قیادت جامع تعاون کے روڈ میپ پر متفق۔ وزیر اعظم اور معزز مہمان کا دو طرفہ تعلقات کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار، دونوں رہنماؤں کی اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کا جامع تعاون کے فریم ورک کے ذریعے اقتصادی تعاون بڑھانے کا فیصلہ، ماحولیاتی تحفظ، قدرتی آفات سے نمٹنے، حلال تجارت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فنی تربیت اور مالیاتی انٹیلیجنس شیئرنگ کے شعبوں میں بھی تعاون کی دستاویزات کا تبادلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اعادہ، طے پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ صدر لوکاشینکو کا دورہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ سرمایہ کاری، تجارت، سیاحت، دفاع سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم کی معزز مہمان کے ہمراہ نیوز کانفرنس، صدر لوکاشینکو کا ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی صدر لوکاشینکو کو سلامی، معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر لوکاشینکو نے ایک دوسرے سے اپنے وفود کا تعارف کرایا۔ بیلاروس کے صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں پودا بھی لگایا۔ ترقی کا عمل روکنے کے لیے فسادی گروہ ایک بار پھر سرگرم، پی ٹی آئی کے تخریب کاروں کی کارروائیاں، شرپسندوں نے سری نگر ہائی وے اسلام آباد پر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، رینجرز کے 3 اور پولیس کا 1 جوان شہید، 7 زخمی، 2 اہلکاروں کی حالت نازک، تخریبی عناصر کی مختلف کارروائیوں میں متعدد پولیس اہلکار زخمی۔ بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام، اسلام آباد واقعے میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکاروں کی چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں نماز جنازہ کی ادائیگی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام کی شرکت، نائک محمد رمضان شہید، سپاہی گلفام خان شہید اور سپاہی شاہ نواز شہید کے جسد خاکی کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، آبائی علاقوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کسی انتشار اور خونریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، پرتشدد واقعات ناقابل قبول اور قابل مذمت ہیں، پوری قوم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری کی بھی واقعے کی شدید مذمت، رینجرز اور پولیس کے شہید اہلکاروں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد میں فوج تعینات، انتشاری گروہ کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے احکامات، شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کا حکم، فوج کی تعیناتی آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारट का डी चौक इस्लामाबाद का दौरा, सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात, बुलंद हौसले की तारीफ, शरपसंदों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान, तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार एक औरत है, अमन अमान यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। रियासत कमजोर नहीं, रिट को हर सूरत बरकरार रखेंगे, तहम्मुल के मुजाहरे को कमजोरी न समझा जाए। ये लोग बाकायदा मनसूबाबंदी से लाशें गिराने के दर पे हैं। गरीबों के बच्चों को ईंधन बनाना बुज़दिलाना फेल है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के बच्चे एहतजाज में शामिल क्यों नहीं? फसादियों और इंतशारियों का कोई मकसद पूरा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारट। एहतजाज की आड़ में पीटीआई कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, सरकारी अमलाक पर हमले, लूट मार और जलाओ घेराव के वाकयात, मीडिया वर्कर्स पर भी तशद्दुद। वफाक के खिलाफ चढ़ाई में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल, सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में शरपसंद कानून शिकनी के मुर्तकिब, पीटीआई कारकुनों का तशद्दुद में मुलव्वस होने का एतराफ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम के लोग हैं और ये पाकिस्तान, ये पुलिस का वर्दी है, ये हमारे नीचे कपड़े हैं। मैं कसम खा के मैंने उन लोगों से सब कुछ लिया है, हमारे बैग में उन लोगों की कारतूस सब कुछ पड़ा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब की शरपसंदों की जानिब से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के वाक़े की शदीद मजम्मत। दूसरों को मारना और जख्मी करना कौन सा पुरअमन एहतजाज है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। मरियम नवाज। रेंजर्स एहलकारों की शहादत, रियासत पर हमला, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सूबे को वफाक से लड़ा रहे हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को झोंका जा रहा है। सूबे में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की मतवाजी हुकूमत चल रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी। मुल्क को दिवालिया देखने के ख्वाहिशमंद अनासिर एक बार फिर अदम इस्तेहकाम में मसरूफ। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुआशी सूरत हाल पर भी असरात। स्टॉक मार्केट में 3505 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 98,079 से 94,574 पर आ गया। इंतशार और फसाद से मईशत को हर दिन 190 अरब रुपए का नुकसान। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी, रेंजर्स जवानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले शरपसंदों को कटहरे में लाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पीटीआई के बारे में वाज़े और दो टोक फैसले का वक्त आन पहुंचा। मजीद ताखीर महंगी पड़ेगी। फैसला करना होगा क्या पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा ग्रोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी। तकरीबी अनासिर को निशाने इबरत बनाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का रद्द अमल। किसी ग्रोह को अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, अफगानिस्तान से शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। अफगानिस्तान से खारजी दहशतगर्दों की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां रोकी जाएं। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान उबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। पाकिस्तान टेलीविजन कौमी रिवायात का अमीन, मुल्क की नजरियाती सरहदों का मुहाफिज और कौमी यकजहती की अलामत। पीटीवी के तारीखी और कामयाब सफर के 60 साल, अवाम को मेयारी तफरी और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें पहुंचाने के साथ खेल के अहम मुकाबलों की कवरेज। पाकिस्तान टेलीविजन की सालगिरह पर तमाम सेंटर्स पर तकरीबात। पीटीवी कौमी उमंगों का तर्जुमान है। आला रिवायात के साथ जिद्दत को भी फरोग दिया जा रहा है। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन अंबरीन जान।
गजा पर सेहोनी जारहियत जारी, मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 44,249 हो गई, 1,04,000 से जायद जख्मी। सेहोनी फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा जारी, इलाके में इंतहाई गंभीर सूरत हाल। जंग बंदी की कोशिशों के साथ इसराइल के लबनान पर हमलों में शिद्दत, 31 अफराद शहीद। सेहोनी फौज की जनूबी लबनान में 30 अहदाफ पर बमबारी, बैरूत के मुख्तलिफ इलाके भी निशाने पर। हिजबुल्लाह की जानिब से भी जवाबी रॉकेट हमले। भारतीय फौज के तहरीक आज़ादी को दबाने के और 6 हथकंडे, राजौरी, उधमपुर, कुपवाड़ा, बारामूला और दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार, जाली मुकाबलों में कत्ल किए जाने का खदशा। काले कवानीन के तहत गिरफ्तार कश्मीरियों की वादी से बाहर जेलों में मुंतकिली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे 10 विकेट से जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। बुलावायों में कौमी टीम ने 146 रन का हदफ 19वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। साइम मुजूब के 113 और अब्दुल्ला शफीक के 32 रन। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा मैच जुमेरात को खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वर्चुअल बोर्ड इजलास 29 नवंबर को तलब। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। मेगा इवेंट फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। बेलारूस ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए बैनुल पार्लिमानी तबादलों को मजबूत बनाने, बिलखुसूस इक्तसादी और तिजारती ताउन के फरोग के लिए मुश्तरका आज़म का इयादा किया है। इस्लामाबाद में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात, वफूद की सतह पर बातचीत और दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले समझौतों की तफसील बताएंगे असद यार खान। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बिलखुसूस सियासी, तिजारती, सरमायाकारी और दिफाई शोबों में ताउन और इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। दोनों रानमाओं ने बाहमी फायदामंद ताउन और इक्तसादी व तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। वजीर आज़म ने कहा कि सदर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। मुलाकात में दोनों रानमाओं ने आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। बातचीत में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादले ख्याल किया गया। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रानमाओं ने पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान साल 2025 से 2027 के लिए जामे ताउन के रोड मैप पर इत्तफाक किया, जिसके तहत आला सतह इजलासों, बैनुल हुकूमती कमीशन और अहदाफ के जरिए इक्तसादी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने दो तरफा इक्तसादी ताउन में तेजी लाने के लिए दरकार कानूनी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने, आला सतह राब्तों और इदारा जाती ताउन के जरिए उसकी रफ्तार को बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुश्तरका अलामिये पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और बेलारूस ने 2025 से 2027 के दरमियान जामे ताउन के रोड मैप पर इत्तफाक किया। इस फ्रेमवर्क के जरिए बामी ताउन के इकदामात इलाकाई इक्तसादी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया है। ई कॉमर्स के शोबे में वजारत तिजारत और बेलारूस की एंटी मोनोपली रेगुलेशन के दरमियान मुफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। बेलारूस की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज और पाकिस्तान की साइंसी और सनती तहकीकी काउंसिल के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल और बेलारूस के एक्रेडिशन सेंटर के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त का तबादला किया गया। ऑडिटर
सॉलिसिटर जनरल ऑफिस और बेलारूस की स्टेट कंट्रोल की कमेटी के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने के हवाले से पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ताउन से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। पाकिस्तान कस्टम्स और बेलारूस की स्टेट कस्टम्स कमेटी के दरमियान मफाहमत की यादाश्त का तबादला किया गया। बेलारूस की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस और पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेस के माबैन मुआहिदा हुआ। दोनों मुल्कों ने बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी मुआहिदा किया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमती ताउन के समझौते और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और बेलारूस की हंगामी सूरत हाल से निपटने की वजारत के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्त का तबादला किया गया। फनी तालीम की तरबियत के इदारे नेफ्टेक और बेलारूस के फनी तालीम के इंस्टीट्यूट के दरमियान मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मतलूब मुल्ज़िमान की हवालगी का मुआहिदा किया गया। पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और बेलारूस की वजारत सेहत के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। हलाल अशिया की तिजारत के हवाले से पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्त का तबादला किया गया। तकरीब के आगाज पर बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ट्रैक्टर्स के सर्टिफिकेट्स पेश किए। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इशाया दिया। इशाइये में बेलारूस वफ़द और पाकिस्तानी काबीना के अरकान ने शिरकत की। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पुरजोश मुसाफा दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का अकास है। मुसल्लह फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने भी बजाए गए। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से अपनी काबीना का तारुफ कराया। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी अपने वफ्द का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ कराया। बेलारूस के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और बेलारूस ने मुस्तकबिल के रोड मैप पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब में मुफाहमत की याददाश्तों को आइंदा साल फरवरी में मुआहिदों में तब्दील करने पर इत्तेफाक किया। तफसील बताएंगे उमर फारूक। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अमली नुक्ता नज़र को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा काबिल एतमाद दोस्त और शराकतदार है। हमने मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। Today we discussed on concrete steps we will make further. We have elaborated and worked out the roadmap of our future actions, as well as signed a huge number of agreements and MOUs. MOUs are good, but we need agreements, we need practical steps. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त करार देते हुए कहा कि आप अपने घर में आए हैं। उन्होंने कहा कि बेलारूस के साथ तय पाने वाले समझौतों को काबिल अमल बनाने के लिए दोनों फ्रीकैन मिलकर बैठेंगे और इस हवाले से आइंदा साल फरवरी में मुफाहमत की यादाश्तों को मुआहिदों की शक्ल दे दी जाएगी। Agricultural machinery and implements, mines and minerals, IT, heavy machinery, all these areas will be discussed today. The two teams will meet again and finalize
convert all these discussions into practical steps, arrangements ready for agreements. बेलारस के सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और मुआशी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ज़राअत, दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ बाहमी फ़ायदामंद शोबों में ताउन का फ़रोग चाहते हैं। We have no political disagreements. Moreover, our political relationship, diplomatic relationship, are brilliant today. However, we need to mention that our trade and economic relationship dramatically lag behind the political one. So what we need to do today is to monetize our political relationship. गजा में इसराइली जारहियत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब तक तनाज़ात हल नहीं, अमन का क़याम मुमकिन नहीं। Situation in Gaza where 45,000 people have been martyred, cities after cities have been razed to ground. And unfortunately, while I speak, ceasefire has yet to take place despite UN resolution for the freedom of the people of Kashmir who have been fighting for their rights of self-determination for the last 75 years. I think unless these issues are resolved, peace around the globe is a far cry. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बेलारस के दरमियान तय पाने वाली मफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों को एक अहम संगे मील करार दिया और कहा कि इन समझौतों की बदौलत दोनों मुल्क एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा कर सकेंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन बढ़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर उन्होंने दो तरफा ताउन के फरोग की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ ने कहा है कि धरने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बुशरा बीबी इस्लामाबाद में लाशें लेने आई हैं, वो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती हैं। रिपोर्ट करेंगे रिजवान आरिफ। डी चौक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वाज़ेह हदायत है कि धरने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमन व अमान यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ना तो उनके इस आने से कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, ना उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने आके देखना था, देख लिया। पीएम की मीटिंग हुई है, उसमें बड़ा क्लियर कट पीएम का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी जिम्मेदार एक औरत है। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रियासत कमजोर नहीं, अमन व अमान की रिट हर सूरत कायम रखेंगे। उन्होंने कहा कि शहादतें मौजूद हैं, वक्त आने पर मुजाहिरीन का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने लाएंगे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के बच्चे एहतजाज में शामिल क्यों नहीं हुए? 9 मई के केसेस हैं, अदालतों में ये केसेस हैं, उस पर क्या बातचीत करनी है? क्या एनआरओ मांग रहे हैं? क्या डील मांग रहे हैं? क्या डील दी जा सकती है? क्या एनआरओ किया जा सकता है? तमाम तर केसेस अदालतों के अंदर अदालतों से रुजू करें, तो इसकी तो कतई इजाजत नहीं है। और देखिए, मैं दोबारा कहूंगा, रियासत के सब्र को मत आजमाएं। आप जो चाहते हैं ना कि स्ट्रेट फायरिंग करके ये बीबीआई खून लेने, ये बीबीआई लाशें लेने। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर फायरिंग और आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जिससे रेंजर्स और पुलिस के एहलकार शदीद जख्मी हुए। बुशरा बीबी मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती हैं। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। इस्लामाबाद वाक़े में शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और आर्मी चीफ ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज पीटीआई के शरपसंदों की जानिब से गाड़ी से कुचले गए 3 रेंजर्स एहलकारों नाइक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नाइब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़,
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों की कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। सदर ममलकत ने शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वाक़ये पर शदीद रंज और दुख का इजहार करते हुए कहा कि ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को मारना और जख्मी करना किस तरह का पुरअमन एहतजाज है। मरियम नवाज ने कहा कि फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। शरपसंदों की जानिब से शहीद रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के मामले पर ड्यूटी पर मामूर जवानों के चश्म कुशा बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। एनी शाहिद रेंजर एहलकारों के मुताबिक गुज़श्ता रात धरने वाली तरफ से तेज रफ्तार गाड़ी आई जो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को कुचल कर आगे निकल गई। रात 2:03 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 2:03 ਦਾ G10 ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਂਜਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ 3 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸਾਂ G10 PTI ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਂਜਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਧਰਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ 150-60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਉਸਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ ਰੇਂਜਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ गया। PTI के शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद जबकि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। PTI के शरपसंद कारकुनान के हमलों से रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हुए हैं। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद जबकि तकरीबन 119 एहलकार जख्मी हैं और 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाइस इस्लामाबाद पुलिस के 11 एहलकार शदीद जख्मी हैं। रेंजर्स को शहीद करने के अफसोसनाक वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़या रात 2:45 बजे पेश आया। शरपसंदों ने हमला मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया जबकि सोशल मीडिया पर वाक़ये को हक़ाइक़ के बरअक्स तोड़ मरोड़ कर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पाक फौज तैनात कर दी गई है। फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। इंतशारियों और शरपसंदों से आहिनी हाथों से निपटने के लिए फौज तैनात की गई है। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के बाद से अहकाम दिए गए हैं। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर की किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इकदाम बुरेकार लाए जा रहे हैं। तहरीकी इंतशार के शर से सहाफ़ी भी महफूज न रहे। एहतजाज की आड़ में गुंडागर्दी करने वालों ने इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के गेट पर हमला कर दिया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले बुलवाइयों ने लम्हा बलम्हा कवरेज करने वाले मीडिया से वाबस्ता अफराद को भी न बख्शा। शरपसंदों ने गैर मुल्की खबर एजेंसी एसोसिएट प्रेस के लिए काम करने वाले कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ को तशद्दुद का निशाना बनाया और कैमरा और पर्स छीन लिया। ये पुलिस का वर्दी है, ये हमारे नीचे कपड़े हैं। मैं कसम खा के मैंने उन लोगों से सब कुछ लिया है। हमारे बैग में उन लोगों की कारतूस सब कुछ पड़ा हुआ है। एक्सप्रेस चौक में एक न्यूज के दफ्तर पर तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरीन ने हमला कर दिया। पथराव से दफ्तर के शीशे टूट गए और डायरेक्टर न्यूज जख्मी हो गए जबकि स्टाफ कई घंटे तक दफ्तर में महसूर रहा। शरपसंदों ने प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर भी हमला कर दिया और शदीद तोड़ फोड़ की। फील्ड में मौजूद मुख्तलिफ चैनल्स की DSNGs और दीगर गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI के बारे में वाज़े और 2 टोक फैसले का वक्त आन पहुंचा है। मजीद ताखीर बहुत महंगी पड़ेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम में कहा कि फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा ग्रोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कौन सी ऐसी जमात है जिसने सूबाई ताकत के जरिए विफाक पर लश्कर कशी की हो।
फायरिंग की हो, आंसू गैस फेंकी हो, निस्फ दर्जन एहलकारों को कत्ल और सैकड़ों को जख्मी कर दिया हो। उन्होंने कहा कि पीटीआई 9 मई 2023 के बाद हरगिज सियासी जमात नहीं रही, लेकिन इसे लंबी ढील दी गई। नतीजा ये कि सियासी झंडा उठाए एक खूनखार लश्कर लाशें गिराता, खून बहाता 9 मई से कहीं बड़ा 9 मई के साथ लिए इस्लामाबाद तक आ पहुंचा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि लाशें उठाती और जनाजे पड़ती रियासत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए रद्द अमल दिया तो फिर ये फसादी गिरोह मजलूमियत की चादर ओढ़कर सियासी हुकूक का वावेला शुरू कर देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह श्रीनगर इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। हमलों में मुलव्विस मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पुरअमन एहतजाज के हक और शरपसंदी और दहशतगर्दी के मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बहादुर बेटे थे, उनके ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने शहदा की दराजात की बुलंदी और जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई मुजाहरे में रेंजर्स एहलकारों की शहादत को रियासत पर हमला करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सूबे में बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतवासी हुकूमत चल रही है। दोनों अफराद सूबे को विफाक से लड़ा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में लोगों के सर कलम किए जा रहे हैं और वज़ीर आला विफाक पर चढ़ाई में मसरूफ़ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को मुजाहिरों में झोंका जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन ने इस्लामाबाद में शरपसंदों की जानिब से रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के नतीजे में एहलकारों की शहादत पर कहा है कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा है, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले माफी हमला किया गया। उन्होंने वाक़ई की मजम्मत करते हुए कहा कि इस वहशियाना फेल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि किसी गिरोह को अमन सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के शिद्दत पसंदों के मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा है कि फितना पार्टी से सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार महफूज हैं और ना ही मीडिया वर्कर्स। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में शरपसंदों और बुलवाइयों के खवातीन सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी शर्मनाक है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि ये इन जाली नाम निहाद पर सियासी कारकुनों का असल और घिनौना चेहरा है। अज़मा बुखारी की निजी टीवी चैनल एक न्यूज़ पर हमले की भी मजम्मत की। सिंध के तवानाई के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि जब मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है तो एक सियासी जमात की जानिब से इंतशार फैलाया जा रहा है। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था कि जत्थे लेकर मुल्क के दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अपने सूबे पर तवज्जो दें और वहाँ अमन व अमान कायम करें। उनका कहना था कि इंतशारी पार्टी मुल्क की तरक्की का पहिया ना रोके। नाज़रीन, मुल्क भर की ताजिर बिरादरी और सनतकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क मुश्किल मराहिल से गुजरते हुए तरक्की की राह पर गामजन हुआ है। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए होने वाले धरनों और एहतजाज से मुल्क को माशी नुकसान ही हुआ है। कराची से रिपोर्ट करेंगे ज़मीर अब्बास। मौजूदा हुकूमत की अनथक मेहनत और मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत अब इस्तेकाम की जानिब गामजन हो चुकी है। मुल्क के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर करते हुए आने वाले सुनहरी दौर की नवीद सुना रहे हैं। ताहम मुल्क की तरक्की के दुश्मन अपने ज़ाती फायदे और मुफादात के लिए आए दिन धरनों और एहतजाज के जरिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। ये जो एहतजाज और ये वायलेंस जो क्रिएट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में हमारी पाकिस्तान के लिए, हमारी पाकिस्तान की मईशत के लिए ये बिल्कुल बेहतर नहीं है। कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। काफ़ी अरसे बाद इंडिकेटर्स इकनॉमी के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक मुल्क एक ट्रैक पर आ रहा है, तो अब उसके लिए अगर कोई भी ऐसा वायलेंस क्रिएट होगा या कोई भी ऐसी पैनिक सिचुएशन होगी तो मेरे ख्याल में अभी हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, जिसकी वजह से हर शोबे में सरमायाकारी में इजाफा देखा जा रहा है। धरने से हर मुल्क का नुकसान है जो है, क्योंकि एक इकनॉमिक साइकिल रुक जाता है। मुल्क की तरक्की के लिए ये चीज़ें बेहतर नहीं है। अगर मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, तो जो भी फॉरेन डेलीगेशन आएगा तो उस पर बुरा असर पड़ता है। और जो हमारी मुआशी जो तरक्की है वो थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई थी, तो ये धरने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहा है। ताजरों का कहना है कि तरक्की के इस सफर को अब रुकना नहीं चाहिए। एक सियासी जमात के ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क की सालमियत, बका और मुआशी तरक्की को नुकसान नहीं पहुँचने दिया जा सकता। मईशत का पहिया चलेगा तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा। तरक्की की राह पर गामजन ये मुल्क अब किसी तौर रुकावटों का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
धरने और एहतजाज का मईशत पर मनफी असर, स्टॉक एक्सचेंज 3,505 पॉइंट्स गंवा बैठा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बावजूद 94,574 पर बंद हुआ। मजीद तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद खान। मुल्क की माशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टॉप एक्सचेंज में शुमार की जा रही थी और 100 इंडेक्स मुसलसल तेजी की जानिब गामजन रहा। आज भी 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 99,819 पर पहुंचा। ताहम एक जमात की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरने और एहतजाज के बायस बाजार हिस्स में शदीद मंदी के बादल छा गए और 100 इंडेक्स 3,505 पॉइंट्स गिर गया, जिससे बड़े सरमायाकारों समेत बाजार हिस्स में छोटी सतह पर हिस्स का लेन देन करने वाले भी शदीद नुकसान से दो चार हो गए। इन चीज़ों से पाकिस्तानी अवाम और ताजिर हजरात हम सब परेशान हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसले मसाइल का हमेशा के लिए कोई हल हो, गुर्बत से निकले, क्योंकि पाकिस्तानियों का मसला गुर्बत है। माशी तज्जियाकार कहते हैं कि एक जानिब हुकूमत की मईशत के लिए की जाने वाली काविशें काबिल तहसीन है, ताहम दूसरी जानिब धरना, एहतजाज और जलाओ घिराव वाले लोगों का रद्द अमल पूरी मईशत के लिए नासूर बन चुका है। मुल्क में उस वक्त माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक वहाँ सियासी इस्तेकाम ना आए। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में एक पॉलिटिकल नॉइज हो रही है, कुछ एहतजाजी तहरीकें हो रही हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लूज कर गया। बाजार हिस्स में कमोबेश सभी सेक्टर्स में मनफी रुझान देखने में आया, जिसके बायस 355 कंपनियों के शेयर्स में कमी और सिर्फ 52 कंपनियों के हिस्से में तेजी रही, जबकि 48 कंपनियों के शेयर्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई का 28 सितंबर के मुकदमे में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की, जिसके दौरान बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बानी पीटीआई के मजीद 15 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। अदालत ने इन्हें 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत को मुतअद्दिद बार कहा है कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए और खवारिज की जानिब से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज की अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुल्की सरहदों की हिफाजत के आज़म का इयादा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन ने वफ्द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मजबूत और शफाफ टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क समेत इक्तिसादी इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने मुख्तलिफ शोबों में आलमी बैंक की माली मुआवनत को सराहा और मालियाती नज़्म व ज़ब्त, पायदार तरक्की और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। इसराइली काबीना लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी के समझौते की मंजूरी देने की तैयारी कर रही है और तफसीलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर मजीद हमले किए हैं, जबकि इसराइली ज़राए अबलाग ने दावा किया है कि इसराइली फौज लबनान में पेशकदमी करते हुए दरिया लितानी तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 20 साल में यह पहला मौका है कि इसराइली फौज दरिया लितानी तक पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बैरूत में इसराइली हमलों में 31 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए हैं। लबनान में इसराइली हमलों से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 3700 से ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज के हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,200 हो गई है। गजा में शदीद बारिश हुई है, जिससे खैमों में रिहाइश पजीर बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने राजौरी, उधमपुर, कुपवाड़ा और बारामूला समेत मुतअद्दिद अजला में बड़े पैमाने पर मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। फौजियों ने गिरफ्तारियों के अलावा मुतअद्दिद दस्तावेजात जब्त की और मकीनों से सख्त पूछगछ की। श्रीनगर में इजाफी भारतीय फोर्सेज तैनात और नई चौकियाँ कायम की गई हैं और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं, जिनमें 30 अफराद को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार
करके वादी कश्मीर से बाहर की जेलों में मुंतकिल किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में महासरे और तराशी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हुए इनको सियासी इंतकाम करार दिया है, जिनका मकसद भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत पर कश्मीरी अवाम को सजा देना है। तर्जुमान ने कहा कि इन ज़ालिमाना हथकंडों से कश्मीरी अवाम मरूब नहीं होंगे, जो हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद के लिए पुरआज़्म हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुगल दौर की एक मस्जिद के नाम निहाद सर्वे के दौरान पुलिस के हाथों 4 मुसलमान नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में अक़लियतों की जिंदगी अजीरन बन गई है। दूसरी जानिब वाशिंगटन में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर-ए-एहतमाम तनाज़ा कश्मीर से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में कश्मीर के नस्ल-ए-ऐन को फ़रोग़ देने के लिए बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के अहम किरदार को उजागर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन की बहाली से मुतालिक आईनी दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल समेत तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसी आईनी बेंच के रूबरू जमात इस्लामी ने पानामा स्कैंडल से मुतालिक मामले पर नैब से रुजू करने का मौक़िफ़ अपनाया, जिसके बाद उसकी आईनी दरखास्त निपटा दी गई। जमात इस्लामी की दरखास्त नैब के लिए इंफॉर्मेशन ही है। बेंच की रुकन जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि पानामा के मखसूस मुकदमे के लिए GIT बनाई गई, मालूम नहीं बाकी मुकदमात किधर गए। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि उनके मौक्किल का भी यही मौक़िफ़ है कि पानामा के बाकी मुकदमात का भी फैसला होना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की सकाफत और रिवायात की आईनादार PTV के क़याम को 60 साल मुकम्मल हो गए। इस तारीखी मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। सच और यकीन का सफर कामयाबी के साथ जारी है। PTV पाकिस्तान का कीमती असासा है। PTV एक टेलीविजन चैनल ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम की यकजहती की भी अलामत है। पाकिस्तान टेलीविजन के तारीखी और कामयाब सफर को 60 साल मुकम्मल हो गए। PTV न्यूज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मैनेजिंग डायरेक्टर PTV अमरीन जान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत PTV मुलाजमीन ने शिरकत की। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मैनेजिंग डायरेक्टर PTV अमरीन जान ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन कौमी उमंगों का तर्जुमान है। मैंने जी PTV को कभी भी लैकिंग नहीं पाया, यानी कभी ये नहीं देखा कि वो पीछे रह गया हो। हर किस्म के काम में PTV आगे आगे है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं इधर हूँ और मेरे जाने के बाद भी इसकी इज्जत और वकार में हमेशा इजाफा ही हो। PTV को ये एजाज़ हासिल है कि कौमी ज़बान उर्दू के साथ बैक वक्त कई इलाकाई ज़बानों में भी खबरें नशर करता है। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम अफराद भी दुनिया भर की खबरों से मुस्तफीद होते हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के वफ़द ने इस्लामाबाद में चेयरमैन डॉक्टर रियाज की सरबराही में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत की जानिब से शफाफ अंदाज में महसूलात में इजाफे के हवाले से तैयार किए गए फ्रेमवर्क से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि टैक्स आमदनी को बेहतर दस्तावेज़ात और मालियाती शफाफियत से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज़ के बायस सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के लिए पानी के मंसूबे के K4 की तौसीक़ का काम मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। कराची में वाबरा के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला का कहना था कि सिंध हुकूमत K4 के लिए 50 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट सप्लाई को यकीनी बनाएगी। RBOD से मुतालिक मसाइल से सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने चेयरमैन वाबरा को आगाही दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि बेलारूस का वफ़द पाकिस्तान में माशी बेहतरी के लिए आया है। इस मौके पर एहतजाज मुल्क दुश्मनी है। लाहौर में उलमा मशाइख के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया कि धरनों की सियासत से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने इस मुल्क के खिलाफ बयान दिया है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि उलमा कराम मुआशरे में फ़िरकावारियत ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें।
قومی اسمبلی کی صحت کی قومی خدمات کی قائمہ کمیٹی نے میڈیکل کالجز میں داخلہ ٹیسٹ کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات پر زور دیا ہے۔ چیئرمین مہیش کمار ملانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں امتحانی عمل کے مضبوط نگرانی کے نظام پر زور دیا گیا۔ اجلاس نے صحت اور طبی تعلیم کو بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کراچی کے چڑیا گھر کی ہتھنی مدھوبالا کو سفاری پارک پہنچانے کا آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ اس موقع پر سفاری پارک میں تقریب ہوئی، احوال بتائیں گے حسن ناصر صدیقی۔ شہر قائد کے تاریخی چڑیا گھر میں موجود ہتھنی مدھوبالا کو ایک کنٹینر کے ذریعے سفاری پارک لے جایا گیا۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والی عالمی تنظیم 4 پاس کی نگرانی میں منتقلی کی کارروائی عمل میں آئی۔ مدھوبالا کے لیے سفاری پارک میں اس کے ساتھیوں سونیا اور ملکہ کے لیے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑی جگہ بنائی گئی ہے، جہاں یہ تینوں ہاتھی بہتر قدرتی ماحول میں رہ سکیں گے۔ In terms of animal welfare, to keep her calm, she got a little bit sedatives. She's good now so far, and she is safe inside. She was quite really traumatized. She was depressed, and now seeing her, she's a completely different elephant. She's happy. She's a teenage girl. She wants to play. کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے سفاری پارک میں ہتھنی کے لیے دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سفاری پارک میں مدھوبالا کے لیے خصوصی کیج اور سینچوری بنائی گئی ہے، جہاں اسے ایک آرام دہ اور بہتر ماحول میسر ہوگا۔ مدھوبالا کی سفاری پارک منتقلی بڑا اور حساس آپریشن تھا، جس کے لیے حفاظتی اقدامات پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ سفاری پارک میں مدھوبالا کو بہتر قدرتی ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی رفاقت بھی میسر ہوگی اور آنے والوں کے لیے اچھی تفریح کا باعث بنے گی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -7، سکردو -5، استور گوپس -4، گلگت اور کالام میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے زمبابوے کو دوسرے ون ڈے میچ میں 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ تیسرا اور فیصلہ کن میچ جمعرات کو بلاوایو میں ہی کھیلا جائے گا۔ نثار مہدی رپورٹ کریں گے۔ بلاوایو میں کھیلے گئے میچ میں زمبابوے نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، تاہم پاکستانی سپنرز کی عمدہ بولنگ کے باعث زمبابوے 32.3 اوورز میں 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا۔ ڈیون مائرز 33 اور شان ولیمز 31 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4 اور سلمان علی آغا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں اوپنرز کی شاندار بیٹنگ کی بدولت گرین شرٹس نے ہدف 18.2 اوورز میں بغیر کوئی وکٹ گنوائے حاصل کیا۔ سائم ایوب نے ون ڈے کیریئر کی پہلی سنچری سکور کی۔ انہوں نے 62 گیندوں پر ناقابل شکست 113 رنز بنائے، جس میں 3 چھکے اور 17 چوکے شامل تھے۔ More and more runs. Heaved away in the air. One bounce for 4. Emphatic. A smile. A resigned smile. عبداللہ شفیق 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سائم ایوب کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے جمعے کو بورڈ میٹنگ طلب کر لی۔ آئی سی سی ترجمان کے مطابق میٹنگ آن لائن ہوگی، جس میں تمام بورڈ ممبران شرکت کریں گے۔ اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی فروری-مارچ میں پاکستان کی میزبانی میں کھیلی جائے گی۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میگا ایونٹ میں اعزاز کا دفاع کرے گی۔ ناظرین، چوتھے T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرا کر مسلسل دوسری کامیابی سمیٹ لی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 145 رن سکور کیے۔ محمد سلمان نے 31 گیندوں پر
43 रन की इनिंग्स खेली। तारिफ रेहान ने नॉट आउट 30 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से बाबर अली, बदर मुनीर, इदरीस सलीम और सलमान के हिस्से में एक एक विकेट आई। पाकिस्तान ने 146 रन का मतलूबा हदफ 12.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद सफदर ने 29 गेंदों पर 41 और नेमतुल्लाह ने 29 गेंदों पर 34 रन बनाए। मोहम्मद सलमान को मैच का इमर्जिंग प्लेयर और बदर मुनीर को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। अफगानिस्तान ने 3 मुल्की अंडर 19 वनडे कप जीत लिया। दुबई में खेले गए फाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन से कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान अंडर 19 ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 250 रन स्कोर किए। बरकत इब्राहिम जई ने 79 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के अली रजा और अब्दुल सुबहान ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 टीम 48 ओवर्स में 229 रन बनाकर आउट हो गई। हारून अरशद ने 70 और शाहजेब खान ने 53 रन स्कोर किए। बात करते हैं फुटबॉल की तो AFC चैंपियंस लीग में सऊदी क्लब अल नसर ने कतर के फुटबॉल क्लब को मात दे दी है। अल खौर कतर में खेले गए मैच में अल नसर ने अल गिराफा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से ज़ेर किया। फातेह टीम की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। अबू धाबी में अल अहली ने अल ऐन के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। अल अहली की जानिब से दोनों गोल टोनी ने किए। टोनी ने 70वें और 74वें मिनट में फुटबॉल को गोल पोस्ट की राह दिखाई। अल ऐन की तरफ से वाहिद गोल अलेजेंड्रो रोमेरो ने किया। पॉइंट्स टेबल पर अल अहली 15 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद है। और दूसरी जानिब इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2 गोल से हरा दिया। न्यूकैसल में खेले गए मैच के 10वें मिनट में टॉमस सोचेक ने गोल करके वेस्ट हैम को बढ़तरी दिलाई। फातेह टीम की जानिब से दूसरा गोल एरन वन बिसाका ने खेल के 53वें मिनट में किया। वेस्ट हैम यूनाइटेड की टीम 18 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर मौजूद है, जबकि लिवरपूल 31 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। शुक्रिया समी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए, आपका शुक्रिया।